Adaraniya Shastri ji. Anybody who came in his contact would be mesmerized, would be inspired. That kind of magnetic personality Shastri ji definitely had. Some of my personal experiences that since I met Adaraniya Shastri ji, there was not a single birthday of mine where I didn't get a call from Shastri ji. And he would call the first thing in the morning to wish me, bless me. And he had composed a little couplet in Sanskrit also, especially with my name in it. And that may be the experience of many, many Karyakartas, not just mine. The first Shakha that was started on the ship, and that story is told and retold in numerous Bodhiks about the beginning of the Vishnu Vibhag. And that's a fascinating story. And that was only possible because of Adaraniya Shastri ji and of course Manik Lal ji. The true nature of a Swayamsevak is to do with self-motivation, without anybody telling and saying. And that one example that they set by doing the prarthana on the ship, making and contacting Swayamsevaks on the ship, and eventually starting the Bharatiya Swayamsevak Sangha in Kenya, then East Africa, is a great example of how a Swayamsevak should be self-motivated. Typically outside, in the outside world, there is the impression that Adesh comes from Nagpur. Here there was no waiting for any Adesh. The Adesh was coming from their inner conscience of being a Swayamsevak. And that's how it started. And that it has become a great kind of a standard for all the Swayamsevaks. इसको बोलते हैं कि एक आदर्श वस्तुपाठ. And then of course Shastri ji being active not only in Kenya, eventually in the UK, and then finally in Canada for many decades. Every time I used to visit his home or meet him, there will be a variety of people. There will be some senior people, and there definitely will be young people. So although he was, when I first met him, I was in his 80s and later in the 90s, there will always be students of his who are at least 50 or 60 years younger than him, who will be there with him and ready to serve him, ready to learn from him, the immense knowledge that he had. That was the kind of personality. तो शास्त्री जी केवल प्रसन्न वदन नहीं थे, प्रसन्न चित्त भी रहते थे. यानी प्रसन्न वदन कोई दिखावा नहीं था, उनके मन का पूरा दर्शन उनके चेहरे पे था. जो उनके मन में प्रसन्नता रहती थी वही मुख पे भी दिखती थी. And hence just being in his company was a altogether different experience. It was an elevating experience. And that also is a great example of how an Adarsha Swayamsevak should be. Always active, always samarpit, and always connecting with people. लोक संग्रही. मुझे लगता है कि शास्त्री जी के ऐसे कई सारी चीजें, बातें, मुझे लगता है कि आने वाले सभी जो वक्ता है, जो अनुभव अपना बताने वाले हैं, सबकी बातों में आने वाला है. तो in a way for Vishnu Vibhag, his story, his personal experiences are legendary. For us, it is a constant source of inspiration. For those who came in his contact, certainly, and for those who read about him and what he did, also it is equally inspiring. Every time I would meet him, he will ask me, when is the next Vishwa Sangha Shibir? And then as he used to always joke and crack jokes many times about himself, he would tell me that अगली बार भी मैं आऊंगा, या तो इस शरीर में आऊंगा या तो अगले जन्म में छोटा बच्चा बनकर आऊंगा, लेकिन विश्व संघ शिविर में मैं जरूर आऊंगा. So that was the kind of positivity, that was the kind of optimism, that was the kind of mental makeup that he had, and that made his personality a magnetic personality.
My million tributes to the memories of Adaraniya Jagdish Chandra Shastri ji. He is a constant source of inspiration. Even though he is not amongst us today, at 100, his smiling face will always be carved on our mental screen. So my tributes, Shata Shata Naman, to the great Karma Yogi, the Rishi of Sangha in Vishwa Vibhag. Namaste. सौमित्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात की विश्व संघ शिविर की, तो मुझे याद है जो उनका आखिरी शिविर था उसमें उनके जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सुरेंद्र भाई साहब आए हुए थे और अचानक पता चला कि शास्त्री जी तो शिविर में पहुंचे हुए पूना में। तो उनकी घुटने का प्रॉब्लम था, उनकी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, लेकिन अपनी शिष्या को उन्होंने देखा कि वो पुणे जा रही है तो उन्होंने चुपचाप टिकट निकाली, साथ में चल पड़े। इतना उनका आग्रह था वहां आने का, ये उनकी एक विशेषता थी। अब मैं अगले वक्ता कीनिया के श्री नवीन भाई शाह को निमंत्रित करूंगा। जैसे हम जानते हैं कीनिया में ही जो है एक संघ का पहला बीज रखा गया था, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार भारत में संघ के लिए नागपुर है, इसी प्रकार विश्व विभाग के लिए कीनिया जो है वो उसका महत्व है। विश्व में कई कई क्षेत्रों में बहुत जगह कीनिया के कार्यकर्ता गए हुए हैं और अधिकतर वो कार्यकर्ता शास्त्री जी के हाथ से निकले हुए थे पिछली पीढ़ी तक। ऐसे कीनिया का एक महत्व का स्थान, और वहां के नवीन भाई को मैं निमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें। मेरा परिचय देना चाहता हूँ। हाँ जी, आपका परिचय मैं एक इंतजार कर रहा था, आया नहीं आपका परिचय, क्षमा करें। नहीं, मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं नवीन भाई शाह, पूर्वी कीनिया के संचालक। अभी 2 साल से रिटायर हो गया हूँ, मगर जो अपनी सेवा विंग चलती है हिंदू रिलीजियस सर्विस सेंटर, उनमें मैं अभी भी ट्रस्टी हूँ। तो 1956 से शाखा शुरू की, मतलब कि अभी 66 ईयर हुआ शाखा का पूरा हुआ मेरा। तो शास्त्री जी का नाम जगदीश चंद्र शारदा, मगर उन्होंने संस्कृत में एग्जाम दी, इसलिए संस्कृत में जो पढ़ाई करता है उनको शास्त्री जी की उपाधि दी जाती है, इसलिए उसका नाम शास्त्री जी आ गया। तो सभी उनको जगदीश जी शास्त्री के नाम से जानते हैं। तो जैसे रतन जी ने बताया कि पहली दफा 1946 में उस एसएस वासना शिप में मुंबई से मोम्बासा के लिए रवाना हुए। तो 5वें दिन उन्होंने डेक पर एक स्वयंसेवक को देखा संघ की निकर में। तो उनको मिलने के लिए ऊपर गए, बातचीत की, तो उनको पता लगा कि वो गुजरात के स्वयंसेवक है, वो खुद पंजाब के स्वयंसेवक थे। तो उसी शाम को एसएस वासना शिप पर प्रार्थना की। वो प्रार्थना देखने के बाद एक एक लोग उनके साथ जुड़ गए, और हर रोज शाम को खेल शुरू हुआ, कोरस शुरू हुआ, और अंत में प्रार्थना। जब शिप मोम्बासा पहुंची तभी 17 लोग ने उस लास्ट दिन पर प्रार्थना की थी। शास्त्री जी मोम्बासा आए, 3 दिन मोम्बासा रहे, बाद में वो नैरोबी गए। नैरोबी सनातन धर्म सभा स्कूल में उनको एज ए हिंदी टीचर के नाते उनको जॉब मिली थी। तो वहाँ स्कूल में काम शुरू किया। 4 बजे छुट्टी होती थी, तो सभी को मिलने के लिए निकल पड़ते थे। तो बातचीत करते करते उनको पता लगा कि काफी पुराने स्वयंसेवक भी वहां पर है। तो 3 मास की प्रयास करने के बाद फिर 1947 मकर संक्रांति के दिन नैरोबी में पहली शाखा शुरुआत हुई। 21 स्वयंसेवक उसमें उपस्थित थे। बीइंग ए टीचर, कीनिया में क्या होता था कि हर एक टीचर को अप्रैल में 3 वीक, अगस्त में 4 वीक और दिसंबर में 5 वीक, कुल 12 वीक की छुट्टी मिलती थी। और हर एक छुट्टी में हर एक छोटे छोटे नगर में जाना, बड़े सिटीज में जाना, वहाँ सबको मिलना, सबको संघ के बारे में बताना। ऐसे जाकर उन्होंने एक एक नगर में, एक एक शहर में जाकर पूरा कीनिया, युगांडा, टांजानिया में घूमने के बाद काफी नगरों में जो शाखा शुरू की, तो वो शास्त्री जी की देन है। 1959 में माननीय भिड़े जी पहली दफा कीनिया आए। तो छुट्टियों के दरमियान
माननीय बेड़ा जी के साथ भी उनका काफी दौरा होता था और सभी शहरों में, सभी छोटे छोटे गांव में जहाँ पर हिंदू आबादी थी वहां पर जाना, सबको मिलना, उनको कन्विंस करना और आगे जाकर वहाँ शाखा शुरू करनी। इस प्रकार से केन्या, युगांडा, तंजानिया में काफी जगह पर शाखा शुरू हो गई। 59 में बेड़े जी जाम्बिया जाने वाले थे, तो शास्त्री जी ने बोला मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और भी उनके साथ चले गए। बेड़े जी ने तो वीजा लिया था जाम्बिया का, मगर शास्त्री जी ने वीजा नहीं लिया। तो बोलते मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जाम्बिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो वीजा की जरूरत नहीं होगी। मगर जैसे एयरपोर्ट पर गए तो उनको तो डिटेन कर दिया, एक दिन पुलिस कस्टडी भी रहना पड़ा। तो बेड़े जी निकलकर जाम्बिया में कुछ स्वयंसेवक थे, उनसे बातचीत की और स्वयंसेवक के प्रयत्न से एक दिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद उनको वहां से रिहा कर दिया। फिर बस वो जाम्बिया में घूमे, वहां पर भी काफी स्वयंसेवक को मिले, वहां भी शाखा शुरू हो गई। बेड़े जी के साथ भी काफी उनका दौरा रहता था और उनके साथ छोटे छोटे बड़े शहर में जाते थे। 1973 में अपने दूसरे प्रचारक माननीय जगदीश चंद्र सूद भारत गए, वहां जाकर पूज्य गुरु जी को मिले। उन्होंने बोला कि भारत में जो प्रार्थना चलती थी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वही प्रार्थना केन्या में भी चल रही थी। उन्होंने बोला अभी केन्या इंडिपेंडेंट हो गया है और भारत के प्रत्येक की प्रार्थना है, तो फॉरेन कंट्री के लिए कोई नई प्रार्थना होनी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने उनके सहयोगी को बैठकर उनको बोला कि नई प्रार्थना विश्व के लिए ड्राफ्ट करो। फिर उन्होंने देखकर सारा ऑल्टरेशन करने के बाद वही प्रार्थना जगदीश चंद्र सूद को दिया और किस प्रकार से उच्चारण करना, क्या करना, सभी सिखा दिया। 73 में वो वापस आए तो जगदीश चंद्र सूद तभी मोम्बासा में थे एज ए टीचर। तो मोम्बासा में 1 मास वो नई प्रार्थना चली, वही प्रार्थना फिर नायरोबी गई और सारे विश्व में वही नई प्रार्थना जो अभी चलती है, वही प्रार्थना सारी विश्व में शुरू हो गई 73 के बाद। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ कहना चाहता हूँ। 1984 में मैं मेरा परिवार के साथ, मतलब कि पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, मेरी छोटी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, उनके बच्चे, 10 लोग कनाडा गए थे शास्त्री जी को मिलने के लिए। तभी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, शी वॉज इन बेड। तो भी शास्त्री जी ने इंसिस्ट किया कि आप रोटी के लिए आओ। मैंने बोला उनकी तबीयत ठीक नहीं, हम रोटी के लिए कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा करो, आपकी पत्नी आपकी बहन रोटी बनाएगी, हम बैठकर साथ में मिलकर खाएंगे। तो फिर हम दूसरे दिन गए उनके घर पर, पत्नी ने और मेरी बहन ने रोटी बनाई और सबने मिलकर रोटी खाई। दिस वाज ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद शास्त्री जी। मतलब कि शास्त्री जी के साथ कितनी आत्मीयता थी वो अपने को बताते हैं। और शास्त्री जी की वजह से और माननीय बेड़े जी की वजह से 1960 की बात करें तो मोम्बासा में 8 शाखा शुरू हो गई थी, नायरोबी में 23 प्लेसेस पर शाखा लगती थी और हर एक नगर में शाखा शुरू हो गई थी। वो सारी देन हम देखें ना तो शास्त्री जी को और माननीय बेड़े जी को जाती है। बस इतना कहकर, और शास्त्री जी की बस यादगार अपने को हमेशा रहती है। और अपने को तो लगता है कि शास्त्री जी के साथ काफी सहवास रहा केन्या में, और शास्त्री जी साथ सभी के जितने भी स्वयंसेवक है सभी उनको याद करते हैं, उनकी मेमोरी सबकी माइंड के अंदर रहती है। बस इतना है केन्या के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई, आप उनके साथ रहे, आपने केन्या में काम खड़ा किया, ये सबको स्मरण होगा। अभी मैं माननीय रवि अय्यर जी को आमंत्रित करता हूँ अपने कुछ विचार रखने के लिए। रवि अय्यर जी उस समय काफी सालों तक विश्व विभाग के सदसंयोजक थे और इस समय भारत की संपर्क टोली के सदस्य हैं। मुंबई इनका निवास है। रवि जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे मैं भी एक प्रचारक था तो हर बार मेरे
जन्मदिन जो पासपोर्ट में लिखा है उसके अनुसार उनका फोन आता था। और सभी प्रचारकों का यही अनुभव रहा है। पहले बार जब मैं कनाडा गया था और उनको जाकर मिला, तो उन्होंने मेरा वेशभूषा देखा। उन्होंने पूछा बाहर क्या टेम्परेचर है, मालूम है क्या? तो मैंने बताया कि -20 डिग्री चल रही है इन दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जो वेशभूषा तुम पहने वो ये यहाँ के लिए लायक नहीं है। ऐसे तो और भी 2-3 लोगों ने कहा था, लेकिन जगदीश जी का एक स्पेशल विशेष बात यह है कि तुरंत उन्होंने वहाँ के व्यवस्था प्रमुख को फ़ोन किया और उनको बुला लिया अपने कमरे में। तो 2 घंटे में वो आए और उनको बताया कि अभी रवि कुमार को ले जाओ यहाँ जो बड़ा स्ट्रीट है और वहाँ से यहाँ के लिए योग्य कपड़े उनको रेडीमेड सूट मिलता है वो दिला दो। यानी उन्होंने केवल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, वो उन्होंने यह भी देखा कि फिर बाद में सीधा मेरे पास लेके आओ। तो यहाँ तक वो ध्यान देते थे, तो मेरे लिए उसका बहुत फ़ायदा हो गया था। दूसरा है, अगले बार जब मैं गया था कनाडा में, तो वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में 2 गुट हो गए थे। लेकिन उन दिनों में जब किसी से भी बात करता था तो कोई एक पक्ष या दूसरा पक्ष लेता था, लेकिन सभी लोग अगर किसी एक व्यक्ति को मानते थे तो वो थे हमारे जगदीश शास्त्री जी। जगदीश शास्त्री जी जैसे सबके लिए सर्वमान्य ऐसे अधिकारी हर देश को मिलना चाहिए, तो देश का काम बहुत आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। सुनाई नहीं दे रहा है? रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम समय में कई उनके पहलू बता दिए चाचा जी के। अब मैं स्वागत करता हूँ धीरज भाई शाह का। धीरज भाई शाह मोम्बासा के स्वयंसेवक यूनाइटेड किंगडम में 1969 में गए, फार्मासिस्ट हैं और इस समय यूके के संघ चालक हैं, माननीय संघ चालक, ट्रस्टी और डायरेक्टर सेवा इंटरनेशनल यूके के। और वहीं उससे पहले मुझे याद आता है कि शास्त्री जी ने किताब में रखा है कि विश्व संघ के वो 3 स्टेजेस गिनते थे। 1947 1957 जब कई देशों में संघ का काम शुरू हुआ, हिंदू स्वयंसेवक संघ का, और 1957 जब माननीय लक्ष्मणराव भिड़े प्रचारक के नाते कीनिया में आए, पहले प्रचारक हिंदू स्वयंसेवक संघ के, और 1977 तक वो काल चला जिस समय विस्तार सारे दुनिया भर में हुआ। और 1977 के समय केंद्र जो था वो कीनिया से हिंदू स्वयंसेवक संघ का लेस्टर यूके में गया। तो यूके के धीरज भाई शाह, और मेरा ख्याल है उस समय से वहां पर थे, ऐसा वो काल था। तो धीरज भाई आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही छोटे टूक समय में आई हैव टू स्पीक अबाउट सच अ लेजेंडरी लाइफ ऑफ माननीय शास्त्री जी। मैं उनको बचपन से जानता था, अपने घर पर जब विनायक की शो आई थी, आई वाज अराउंड 13-14 इयर्स तक से वो अपने घर में आते रहते थे और परिवार के रूप में रहते थे। बस मुझे यूके के बारे में जो बताऊं तो 1960s में उनके दोनों बेटे, मेरे ख्याल से कमलेश जी और सुरेंद्र जी, सब उस समय पढ़ते थे लीड्स यूनिवर्सिटी में और ब्रेडफोर्ड में। उस समय वो आते थे यूके में हॉलीडे समय। उसी समय भी वो, जब मेरे ख्याल शाखा शायद 66 के पहले या उस समय भी वो प्रयत्न करते थे तो संघ का काम शुरू। और मुझे याद है इवन बिफोर 66 छोटे रूप में उन्होंने जब लीड्स ब्रेडफोर्ड में भी शाखा का रूप शुरू कर दिया था। मतलब कि wherever you went, he made sure कि संघ का काम वहां पर शुरू हो या मिले। But as far as my personal reflection is concerned, I can say that I always viewed him as a model संघ प्रचारक। हम तो छोटे थे केन्या में, तो संघ के प्रचारक के बारे में जानते थे। We were very young at that time. But when he came in contact with him, we visualized him as a model for us. और याद है मुझे कि जब भी उनको छुट्टी में वो मोम्बासा आते थे
तो एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि वो शाम की शाखा में आकर हमें हर स्टोरीज वगैरह कहते थे. And he had that ability to mix with the young. Being a teacher, he had a knack of mixing with very young persons. But मैं तो छोटी आयु से जानता था, बट जब मैं यूके में आने के बाद मेरे को जिम्मेवारी आई, तो एक बार मुझे 80s की याद है. मैंने उनको कहा कि अपने यंग फ्रेंड्सों के लिए डॉक्टर जी की जीवनी इंग्लिश में नहीं है, मतलब उस समय नहीं थी. तो मैंने उनको बताया कि क्या आप हिंदी में से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उस पुस्तक को. तो विदाउट एनी हेजिटेंसी वो कहते कि मुझे समय दीजिए और मैं डेफिनेटली आपको करूंगा. और विदिन अ फ्यू मंथ्स ही ट्रांसलेटेड द होल हिंदी इनटू इंग्लिश. आई थिंक मस्ट बी अबाउट 60-70 पेजेस हैंड रिटन. वो पुस्तक बना के मुझे दिया. आई वाज अमेज्ड कि सच डिलीजेंटली उन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने दिया. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे अभी भी मेरे माइंड में रहती है बात, 1965 में मुझे याद है केनियाटा कॉलेज में बड़ा नेशनल शिविर था. उस समय आई वाज ओनली किशोर, मैं था 15 इयर्स था. और उसके कैंप के बाद हम सब युगांडा के ट्रिप में गए थे. आते समय नकुरो में रहे, तो उन्होंने खास हमें, हम 4-5 लोग थे यंग टीनेजर्स, हमें उनको घर पर बुलाया भोजन के लिए. हम भोजन किया. वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व व्हिच स्ट्रक मी एंड स्टिल रिमेन्स इन माय माइंड, इसके हम भोजन के बाद उनके यहाँ जो अफ्रीकन काम करता है, वो हमारे किचन में हमारे साथ जैसे हम जो बैठते थे उसी प्रकार किचन में बैठकर हमें जिस यूटेंसिल्स में हम खाते थे उसी यूटेंसिल्स में लेकर अपनी थाली में लेकर वो भोजन करते थे. ये मेरे लिए बहुत ही एक आई ओपनर था, क्योंकि उस समय मुझे याद है कि हमारे घर पर जो अफ्रीकन काम करते उनके लिए हम अलग ही जगह बैठाते थे, अलग जीते थे. बट हियर इज अ पर्सन हमारे कि जो अपने काम करने वाले को भी सेम ट्रीटमेंट, मतलब कि अपने ही खाना अपनी थाली में रखकर खाना. मैं उस समय यंग था बट इट स्ट्रक मी. और उस वो अभी भी मेरे मेमोरी में है कि सच अ लिविंग एग्जांपल ही वाज. अगर दूसरी एक बात जो मुझे अभी याद आती है कि जब भी वो कनाडा से यूके आते थे घूमने के लिए, तो फर्स्ट थिंग इज टू रिंग अस और मेकिंग श्योर दैट उस समय में कार्यरत था यूके का. तो आते हुए मुझे पूछते थे कैसे हैं सब घर में. और विशेषता थी कि वो परिवार के साथ इतने मिल गए थे तो सबके नाम भी जानते थे. तो मेरे चाची जी, मेरे माता जी, पिताजी, सबके बारे में, मतलब कि हम जब सब कहते हैं ना कि संगत का संबंध जो है वो घर तक किचन तक पहुंचना चाहिए, ये वास्तविक उनका एग्जाम्पल था. और मेरे लिए तो मैं ऐसे मानता हूँ कि he was a great mentor, an inspiring and a very loving personality, and always उसके पॉजिटिव थॉट्स निकलते थे. In spite of his illness, मुझे याद है 2016 जब हमारा महाशिविर होने वाला था, so I had asked him कुछ लिखने के बारे में अपने मैगजीन के लिए. तो वहां से वो मुझे लिखकर और कभी कभी फोन पर भी पूछते थे. आई थिंक उनकी तबीयत भी उस समय ठीक नहीं थी, बट नेवर एवर आई हर्ड एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इट. सो ही वाज अ रिसोर्सफुल एंड पर्सनालिटी ऑफ पॉजिटिवनेस ऑलवेज. और हर हमेशा मुझे याद है कि उनकी लाइफ में इट हैज लॉट ऑफ इम्प्रिंट्स ऑन मी एज वेल इन माय थिंकिंग. और मैं उनको तो हर समय सतत प्रणाम करता हूँ. और उनकी यादगारी लाइफ टाइम रहेगी फॉर यंगर जनरेशन के लिए. और यूके में भी उनका बहुत ही इनडायरेक्ट प्रभाव था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इनिशियल सेवन इन यूके वर फ्रॉम केन्या. सो उनका जो रिस्पेक्ट और उनका जो मेंटरिंग था वो यूके में भी उनका उस काम का पड़ा था. बस इतना कहकर मैं उनको सत प्रणाम करता हूँ कि सेंटेनरी के. बहुत धन्यवाद माननीय धीरज भाई. और आप तो बहुत निकट से शिशुकाल से उनको देख रहे थे, उनके साथ आपने काम किया, सद्भाग्य था आपका. उनकी स्मरण शक्ति की बात करूं तो सबको याद होगा कि वो हमेशा आखिरी समय तक भी जन्मदिन पे सभी को फोन करते थे और सैकड़ों नाम उनके पास थे. जब मैं आखिरी बार उनको मिलने ही गया था तो उन्होंने मुझे कहा ये एक नंबर गलत चल रहा है, ये नंबर तुम्हारा ठीक करके लिखो, मुझे पिछली बार फोन करने में कुछ दिक्कत हुई थी. वो डायरी उनके पास हमेशा अप टू डेट रहती थी ऐसे. और उनका जो पॉजिटिव का स्वभाव
हमारा घर 3rd फ्लोर पे था, उस समय तक उनके घुटने बहुत दर्द करने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। वो कहते थे, देखो मैं तुम्हें कैसे चढ़ना सीढ़ी सिखाता हूँ। कंधे पे हाथ रखते थे, कहते थे 1 2 3 में कदम आगे रखना, शाबाश सीख गए। तो ऐसे एक पॉजिटिव व्यक्ति के बारे में आज बात कर रहे हैं। अगले वक्ता है हमारे डॉक्टर रत्नाकर नरवे, महान विद्वान है, पीएचडी आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर्स में, पीएचडी संस्कृत में कालिदास संस्कृत विद्यापीठ में, कई पुरस्कारों से सुशोभित, हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जो शास्त्री जी का एक स्वप्न था, उस हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के उनके बहुत सब करीब के सहयोगी रहे। और हिंदू इंस्टीट्यूट लर्निंग के द्वारा एक और बात जो ध्यान में आती है कि शास्त्री जी की जो मित्रता थी वो अक्रॉस नेशनैलिटीज, अक्रॉस भाषा, अक्रॉस हर तरह का उनका सबसे प्रेम था, सब संबंध थे। तो मैं डॉक्टर रत्नाकर नरवे जी को स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवरीबॉडी। शास्त्री जी के बारे में आज बोलने का मेरा सौभाग्य है। सभी जो विद्वान सज्जन स्वयं सेवक आज जुड़े हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम या नमस्कार। मेरा ये सौभाग्य था, मैं कनाडा में तकरीबन 52 ईयर से 52 साल से यहाँ पर हूँ। तो यहाँ कनाडा के सीमित ही बोलूंगा आज मैं। कनाडा से बाहर जो लोग हैं उनमें से रतन शारदा जी से मिलने का मुझे सौभाग्य था। आशा शारदा जी, रवि कुमार अय्यर जी, श्याम परांडे जी, यशवंत पाठक जी, सौमित्र गोखले जी और शंकर राव जी से मिलने का मुझे यहाँ ना कहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है मेरी लाइफ में। शास्त्री जी की स्टोरी जो है, अभी जो किताब दिखाई गई ग्लोबल हिंदू की, वो शास्त्री जी की बायोग्राफी, मेरा सौभाग्य है कि ये किताब, यह पुस्तक यहीं लिखी गई कनाडा में। हमने उस पर कंपोजिशन में बहुत मेहनत की थी और मुझे सौभाग्य था कि इस किताब का मैं पार्ट भी हूँ और किताब में भी हूँ मैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और रतन शारदा जी ने इंडिया में उसको छपवा कर एक सुंदर सी किताब बनाई। जिसको इसको चाहिए वो शारदा जी से मंगा सकते हैं, रतन जी से। कनाडा में शास्त्री जी का और हमारा मुख्य योगदान ये था कि हमने हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, शॉर्ट में हिंदू इंस्टीट्यूट नाम की संस्था स्थापन की। इस सिलसिले में मेरा शास्त्री जी के साथ 25 साल योगदान रहा। शास्त्री जी का गाइडेंस था और हिंदू इंस्टीट्यूट का मैं करता धरता होता था। हमने शास्त्री जी के साथ मिलकर एक ध्येय बनाया था कि प्रोग्रेस डेली होनी चाहिए। ऐसा दिन ना जाए कि हमने कुछ आगे बढ़े नहीं हमारे ध्येय। तो उसमें सेटिंग अप क्लासेस में हम पढ़ाते थे। हिंदी मेन थी, हिंदी और संस्कृत, बाकी अन्य भारतीय भाषाएं, संगीत और भारतीय संस्कृति, गीता, रामायण, इनकी क्लासेस चलती थी। क्लासेस की सेटिंग अप, स्टडी मटेरियल, हमने किताबें लिखते थे उनको लिखने के लिए, मैं लिखता था। और न्यू क्लासेस बनाने, ये ड्यूटी मेरी थी। और अट्रैक्टिंग न्यू पीपल, अट्रैक्टिंग न्यू डोनर्स एंड वर्किंग एट बिल्डिंग आवर ओन बिल्डिंग, ये 3 चीजें शास्त्री जी की तरफ थी। विनय शारदा जी हमें जो एनुअल डिनर होते थे उसके लिए हमारे लिए स्लाइड शोज बनाते थे, वो प्रमोशन का काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। उनके हेल्प से हमारा एनुअल डिनर का प्रोग्राम बहुत बढ़िया और अच्छा होता था। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े कनाडा के लोग जुड़े हुए थे। उनमें से कुछ नाम लूंगा मैं। चंद्र खन्ना जी, राकेश शर्मा जी, आशा महाराज, राजकुमार शर्मा जी, जो स्कूल्स, गौरी रोहित जी, नवीन मेहता, शिवराम जी, वसंता जगन्नाथ, कुलदीप सिंह भंडारी, विजय विक्रम, केसी भटनागर जी, जेफलाल, मोहन सुखदेव, यश कपूर जी, महेंद्र गुप्ता जी
अमर एरी जी और कई सारे लोग जुड़े थे। उनके सारे सहयोग से हमने कनाडा की सबसे बड़ी भारतीय संस्था हमने खड़ी की थी। और शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि ऐसा हार्डली कोई आदमी था कनाडा में, भारतीय आदमी, कि जो शास्त्री जी को नहीं जानता था। तो एक बार मेरे 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 अध्यक्ष के स्पीच में मैंने कहा था कि ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो शास्त्री जी को जानता नहीं, और जो शास्त्री जी को जानता नहीं वो आदमी भी किसी काम का नहीं फिर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया था कि काम का आदमी, इसका मतलब शास्त्री जी को जानता ही होगा। काम का माने भारतीय संस्कृति के या एक संस्कृत बना हुआ है ऐसा आदमी हो, वही हमारे लायक है। बाकी लोग तो फिर लोग हैं। तो मैं सबको फिर से प्रणाम करके ये कहूँगा कि पासिंग अवे शास्त्री जी का स्वर्गवास मेरे पर्सनली बहुत बड़ा लॉस हुआ है मुझे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन मैंने शास्त्री जी का किसी न किसी एज अ ग्रेट फ्रेंड और एज ए मेंटर, एज ए फ्रेंड, एज ए आदर्श उनको मैंने याद ना किया हो। तो शास्त्री जी के पुण्यात्मा को प्रणाम करके और सब श्रोतागण को नमस्ते करके मैं विराम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरड़े जी। श्रीधर दामले जी हमारे बीच है, उन्होंने एक संस्मरण याद कराया है तो मैं यहाँ दोहरा दूं। राष्ट्रपति जोमो केनियाट्टा को भारतीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में लाने वाला एक बहुत बड़ा काम उस समय के स्वयंसेवक किया, उसमें चाचा जी का भी हाथ था। और ऑफ कोर्स उन्होंने चमनलाल जी और लक्ष्मण जी का नाम लिया है, तो माननीय चमनलाल जी पंजाब में भी उनके प्रचारक थे और चमनलाल जी ने सारे विश्व विभाग को जोड़ के रखने का काम उस जमाने में किया था, हम सबको स्मरण है। तो उनको भी आज हम याद कर रहे हैं। लक्ष्मणराव भिड़े जी को तो याद कर ही रहे हैं, उनके बिना तो ये प्रवास पूरा होता ही नहीं। और आगे अगले वक्ता है हमारे यशवंतराव पाठक, वो आए उससे पहले मुझे कुछ याद आ गया कि जब चाचा जी 1989 में 89 तक 75 साल की उम्र तक उन्होंने कार्यालय प्रमुख का काम कनाडा में किया था, और 75 साल की उम्र के बाद पूरा समय जो उन्होंने हिंदू इंस्टीट्यूट लर्निंग उसको दिया। यानी जब 75 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि अब काम पूरा हो गया, उस समय नया काम उन्होंने शुरू किया। ऐसी गजब के एनर्जी वाले चाचा जी थे। तो प्रोफेसर यशवंतराव पाठक बहुत अच्छे मेरे मित्र, मेरे आदर्श, उन्होंने मुझे पीएचडी के लिए प्रेरित किया। इस समय फ्लोरिडा में है, विश्व विभाग के संयोजक थे जब उन्होंने शास्त्री जी के साथ अफ्रीका में भी काम किया, कनाडा में भी काम किया। तो यशवंतराव आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई रतन जी। जगदीश शारदा जी शास्त्री जी और माणिक भाई रुंगवाणी, ये दो नाम पहली बार मैंने सुना तृतीय वर्ष में 42 साल पूर्व, जब माननीय लक्ष्मणराव जी भिड़े तृतीय वर्ष में बौद्धिक देने के लिए आए थे। और उसी समय उन्होंने ये दोनों नाम लिए थे कि संघ की शाखा विश्व विभाग में या विदेश विभाग में किस प्रकार शुरू हुई। और उसके बाद लगातार मान्यवर चमनलाल जी के साथ भी जब भी चर्चा वार्ता होती थी या विश्व विभाग के बारे में बातचीत चलती थी, तो शास्त्री जी का नाम तो समय समय पर आता ही था। कभी ये नहीं सोचा था 1980 में जब मेरा तृतीय वर्ष हुआ कि इन दो महाभागों को देखने का व्यक्तिगत रूप से मुझे सौभाग्य मिलेगा, लेकिन प्रॉब्ली भगवान की ये इच्छा होगी। उसके बाद 1993 में केनिया में मैंने पहली बार जब प्रवास किया, तब अनेक संस्मरण और अनेक कार्यकर्ताओं से उनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली। हालांकि शास्त्री जी को छोड़कर, केनिया छोड़कर बहुत साल हुए थे, फिर भी उनकी यादें वहां रही थी और सबके मन में उनके बारे में जो भाव था एक अद्भुत था। और फिर 94-95 में जब उनको पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ टोरंटो में, तो उस समय मुझे एक पुराना गीत याद गया जो परम पुण्य सरसंघ चालक मान्यवर श्री गुरु जी के लिए लिखा गया था, लेकिन बड़ा अप्रोप्रिएट, बड़ा सटीक सा जगदीश जी के लिए भी व्यक्त करता है। आपकी पीयूष वाणी शब्द को भी धन्य करती, आपकी आत्मीयता थी युगल नयनों से बरसती,
और वह निश्चल हंसी जो गूंज उठती थी गगन में, शत नमन माधव चरण में। आज तो उसे भी शत नमन जगदीश चरण में हम लोग सहज रीत्या कह सकते हैं। इतना शास्त्री जी की वाणी, उनकी आत्मीयता, उनकी हंसी, यह सदैव सभी कार्यकर्ताओं के मन में रही। और अत्यंत श्रद्धावान स्वयंसेवक, जो श्रद्धा आज भी हम सारे विश्व विभाग के अनेकों देशों में चल रहे संघ कार्य के स्वयंसेवकों के माध्यम से वही श्रद्धा को हम आज देखते हैं। आप केनिया जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, आप अमेरिका माता आइए या ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं पर भी आप जाएंगे तो संघ के बारे में जो श्रद्धा, अटूट श्रद्धा अपने स्वयंसेवकों के मन में है, इसकी एक प्रकार से आदर्श जगदीश जी स्वयं थे। और संपर्क सूत्र को बांध के रखना और उसे सदैव जागृत करना, यह शास्त्री जी की विशेषता थी। और हम सब में आज अनेक लोगों ने बताया ही है, लेकिन हम सबके मन में अपने अपने जन्मदिन पर उनकी फोन और उनकी हंसी और उनकी आत्मीयता हम सबको आज भी याद आते रहती है। अनेक बड़े बड़े संस्मरण हैं, अनेक बार उनके साथ मेरा मिलना भी हुआ, बातचीत भी हुई, मार्गदर्शन भी उनसे मिला, और हम अनेक लोगों ने अभी उनके बारे में बहुत अच्छा बताया है। समय के कारण मैं अभी समाप्त करना चाहता हूँ। एक बात मुझे कहना है कि शास्त्री जी का सबसे बड़ा योगदान यदि कोई हो तो शास्त्री जी ने विश्व विभाग को नागपुर दे दिया। मैं हर समय जब भी केनिया जाता हूँ तो केनिया के स्वयंसेवकों को बोलता हूँ, केनिया के स्वयंसेवक के तो नागपुर के जैसे स्वयंसेवक थे, जहां गए वहां उन्होंने शाखाएं शुरू की। ऑस्ट्रेलिया में केनिया के स्वयंसेवक ने शाखा शुरू की, कनाडा में केनिया के स्वयंसेवक ने शाखा शुरू की। ऐसा यदि भारत में आप सोचते हैं तो भारत के यदि सभी राज्यों की इतिहास देखा गया तो शायद ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई नागपुर का स्वयंसेवक उसने उस प्रदेश की एक ना एक शाखा तो जरूर शुरू की है। इसी प्रकार जगदीश प्रसाद शास्त्री जी ने विश्व विभाग को अपना नागपुर केनिया के रूप में दिया, और केनिया के स्वयंसेवकों की आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन वो अभी भी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। इतना कहकर मैं मेरा निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद यशवंत जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा माननीय हसमुख भाई को। हसमुख ईशा मूल केनिया के स्वयंसेवक जैसे बाकी सब है, यूके के अंदर विश्व हिंदू परिषद यूके के ट्रस्टी हैं, डायरेक्टर हैं और नेशनल बोर्ड ऑफ कन्वीनर है सरस्वती विद्यालय के। एक बात यूके की निकली तो और बताना चाहूंगा, शास्त्री जी एक फेलोशिप लेकर यूएनओ की ओर से सारे यूरोप का उन्होंने भ्रमण किया था। उनको 2 पेपर देने थे। एक पेपर उन्होंने संघ के साथ जोड़ा और वहां पूरा अध्ययन करने का उन्होंने पेपर दिया 1966 में, 1966 में, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व के 3 सबसे सबल युवक संगठनों में से एक है। ऐसा उन्होंने पेपर दिया जिसकी बहुत प्रशंसा वहां के डायरेक्टर ने भी की। तो ऐसा उनका अध्ययन था। हसमुख भाई, आपका स्वागत है। नमस्ते सबको, माननीय अधिकारी वर्ग और अन्य स्वयंसेवक बंधु। आज मैं ये देख रहा हूँ कि एक बीज जो उन्होंने माननीय शास्त्री जी ने बोया था, आज एक वटवृक्ष होकर यहाँ उपस्थित है अपने सबके सामने। और मेरे लिए तो और भी एक अनोखा प्रसंग है, क्योंकि नहीं तो केवल एक संघ की दृष्टि से ये हमारे प्रेरक और मार्गदर्शक रहे, परंतु कई जो नकुरु से आए हैं और हम समझते हैं कि नकुरु के स्वयंसेवक जहाँ जहाँ गए उन्होंने माननीय शास्त्री जी की प्रतिभा को बढ़ाया है। तो जो भी नकुरु के स्वयंसेवक है, इंक्लूडिंग अपने सुरेंद्र जी शारदा, उनके सुपुत्र, और कमलेश जी शारदा जी, उनको उन्होंने स्कूल में पढ़ाया भी है। तो हम सब के वो एक अध्यापक भी थे, एक आचार्य थे। तो मेरी दृष्टि से मैं यदि कहूँ कि जब 7 वर्ष का था 57 में, जब मैं संघ में मेरी अंदर मैं संघ में गया, तो तब एक अधिकारी
एक ऐसे कह सकते हैं कि हम तो उनको एक ऋषिवर के दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनके बौद्धिक में इतना हास्य, लेकिन इतनी सुंदर बातें जो थी, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हृदय में अंदर हो गई और हम सब संगमय बन गए। और बाद में जब मैं स्कूल में सेकेंडरी में गया, वहाँ वो हिस्ट्री के टीचर थे मेरे, और जब भी स्कूल में क्लास में आते थे, सभी उठकर उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे, और मुझे देखकर हंसते हंसते नमस्ते हसमुख जी। तो सभी स्टूडेंट देखने लगते थे कि ये क्या कैसा संबंध है। तो मैंने उनको कहा कि ये एक शिष्य और गुरु का संबंध है। बाद में जैसे मैं और अमृत जी, मेरे भाई, और अन्य स्वयंसेवक आज जो यहाँ है, रसिक जी को मैं देखता हूँ, मधुसूदन जी को देखता हूँ, जो भी नकुर से आए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ माननीय शास्त्री जी का एक घनिष्ठ संबंध हो गया। और मेरे परिवार का मैं खास कहूँ, अमृत जी और दिनेश जी जो अब नहीं है, वो शाखा में मुझे ले गए, परंतु हमारे बाद में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी स्वयंसेवक बने, और ये श्रेय जाता है माननीय शास्त्री जी को, क्योंकि हर रोज हर शाखा के पश्चात, संघ के पश्चात वो घर आना, पिताजी से मिलना, और ऐसा संबंध घनिष्ठ हो गया कि एक ऐसा लगता था कि ये दोनों भाई हैं। और उन्होंने पिताजी का उल्लेख भी किया हुआ है ये ग्लोबल हिंदू पुस्तक में। और यदि हम देखें तो कीनिया में जो हिंदू काउंसिल ऑफ कीनिया जो बनी थी, वो सब जितने भी टाउन्स थे वहाँ भी बनाई थी। और जब शास्त्री जी का केरिचो जाना हुआ, तो वहाँ भी मंदिर और गुरुद्वारे को भी उन्होंने हिंदू काउंसिल में उन्होंने इंक्लूड किया। तो ये उनकी एक अनोखी बातें हैं, जहाँ भी जाते थे वो बीज अपना रखते थे। और जब आई प्रार्थना की बात, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा नवीन भाई जी को, क्योंकि मैं 67 में यूके में आया, उससे पहले नई प्रार्थना संघ की वहाँ शुरू हो गई थी कीनिया में, और वो 63 था। एल्डोरेड की कैंप में उन्होंने ये उच्चार किया, और मैंने प्रथम ये प्रार्थना गाई थी, क्योंकि उन्होंने माननीय शास्त्री जी ने एकदम ढंग से उच्चार कैसे करना वो सिखाए। और जब यूके में हम आए, तो यही प्रार्थना यहाँ हम लेकर आए थे। और ये प्रार्थना असल में परम पूज्य गुरु जी ने विश्व हिंदू परिषद की ये ओरिजिनल ये प्रार्थना है, उसको सब जगह कैसे सारे विश्व में भारत के बाहर रखना, ये काम दिया था। तो यही विश्व हिंदू परिषद की प्रार्थना आज भारत के बाहर हिंदू स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना है। तो माननीय शास्त्री जी को हम देखते हैं, मैं ये समझता हूँ हम सब के लिए अमर ज्योत है ये। और एक जो गीत है ध्यान में आता है, वो है संघ किरण घर घर देने का, अगणित नंदा दीप जले। तो घर घर में भारत के बाहर उन्होंने ये जो संघ का बीज भिगोया है, आज वो वट वृक्ष होकर हम सभी यहाँ उपस्थित है। तो मेरे भी आदरणीय शास्त्री जी को शत शत प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख भाई। इसके बाद हमारे तरुण प्रचारक श्री संतोष प्रभु जी को मैं निमंत्रित करूंगा। उन्होंने कहा था समय कम हो तो मुझे नहीं बोलने दोगे तो चलेगा, लेकिन शास्त्री जी का इतना प्रेम कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उनका सबसे प्रेम रहता था। और यहाँ पर माननीय रमेश मेहता जी बैठे हैं, मेरे संघ चालक भी रहे किसी समय, बड़े प्रेम से यहाँ पर आए हैं।
तो शास्त्री जब उनको मिले तो उनको उन्होंने कहा दिस इज लव एट फर्स्ट साइट रमेश भाई जी, मैं आपका तो एकदम फैन हो गया, आपका बस दोस्त बन गया। और रमेश भाई का भी वैसी दोस्ती चली। समय कम है इसलिए उनको बुला नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बात हमेशा हम हंस के याद करते हैं, ऐसा उनका प्रेम था। संतोष जी आपका स्वागत है। संतोष जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिछले कई वर्षों से कनाडा में हिंदू स्वयं सत्संग के प्रचारक है। संतोष जी आइए। नमस्ते। पहली बार तो मैंने शास्त्री जी के बारे में सुना था बौद्धिक में, जब यूएस में था। संघ शिक्षा वर्ग में हम सुनते थे कि पहली शाखा लगी थी भारत के बाहर, जो बोट में वो केन्या जा रही थी, तो शास्त्री जी उसमें थे, तो उन्होंने वहां शुरू की थी। तो जब मुझे कनाडा जब 2013 में आया प्रचारक करके, तो मुझे बहुत यह लगा कि अच्छा शास्त्री जी से मिलना होगा। तो उसके बाद में आया 2013 में प्रचारक करके, तो काफी बार मैं जाता था उनके वहां पर निवास में जाता था, काफी समय साथ में बिताया। कई सारे बातें ऐसे मुझे ध्यान में आए, जैसे एक मुझे याद है कि माननीय दत्ता जी जब आए थे, तो दत्ता जी ने ऐसा बताया शास्त्री जी को कि आपने शुरू की थी ना शाखा, वो पहली शाखा। तो बोले शास्त्री जी बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं, बाकी भी लोग थे, मैं अकेला नहीं था, बाकी भी लोग थे, हमने सबने साथ में मिलकर शाखा शुरू की थी। तो इस प्रकार से बोलते थे, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल, मतलब ईगो ऐसा एकदम ना के बराबर था। और जैसे सौमित्र जी ने बताया कि मतलब जो एक पॉजिटिविटी हमेशा मन में भी वाणी में भी, और इतना पॉजिटिविटी मतलब लगता था जब मैं वहां जाता था, समय बिताता था वहां पर। और मैं जब किसी को भी लेकर जाता था, कोई अपने युवा कार्यकर्ता इनको सब लेकर जाता था, तो बोलते थे कि उनको बोलते थे कि अच्छा तुम वो प्लेट लेके आओ, ये चाय लेके आओ, ये संतोष जी हमारे प्रचारक है, इनको ये सब काम नहीं देंगे, ऐसा करके बोलते थे हमेशा। तो उस प्रकार से रहा। और बाकी भी जैसे सभी ने बताया कि जन्मदिन याद रखते थे, तो मेरा भी जब जन्मदिन होता है तो कॉल करते थे। और मुझे याद है कि जो 2017 में दिसंबर 25 तारीख को छोड़ के चले गए थे, तो उसमें नवंबर 18 तारीख को लास्ट मुझे कॉल आया था शास्त्री जी का, और वो भी यशवंत पाठक जी का नंबर पूछ के कि उनका नंबर दो, मुझे कॉल करना है उनके जन्मदिन के लिए, उनको विश करना है। तो बस वो लास्ट कॉल था। तो बस इसे कई सारे यादें मुझे लगता है कि शास्त्री बाकी लोगों ने बताया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ समय उनके साथ बिता पाया। और मैं जब पूछता था उनको कि आप अकेले रहते हैं यहाँ डाउनटाउन में, तो बोलते थे कि क्या और क्या, वहां रहूंगा तो बच्चों के वहां रहूंगा तो मैं टीवी देखूंगा, और बाकी खाना पीना यही होता है। यहाँ पर हूँ तो मैं स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सिखा सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ। तो इस प्रकार से मतलब एंड तक किस प्रकार से पूरे अपने जीवन को सार्थक किस प्रकार से बनाना, ये मुझे लगता है कि उत्तम उदाहरण शास्त्री जी का था। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत। अब हम उनके परिवार की ओर मुड़ते हैं। यहाँ पर इस सभा के अंदर शारदा परिवार के बहुत सारे सदस्य भारत से, कनाडा से, यूके से जुड़े हैं। और जो उनका एक विशेषता थी कि परिवार के पहले संघ, वही उनके परिवार में भी चल रहा है। उनके संस्मरण में उन्होंने लिखा है एक जगह कि मेरा सौभाग्य था कि कनाडा के एक उत्सव में मेरे सारे परिवार के 13 सदस्य थे। तो ऐसा ये परिवार है जो संघ से उनके बाद भी अगली पीढ़ी तक भी जुड़ा हुआ है, और छोटे से छोटा बालक से लेकर उनके बड़े पुत्र तक सभी। तो लेकिन इतना होते हुए भी कमलेश जी ने कहा कि केवल मैं ही परिवार की ओर से बोलूंगा। तो एक जो स्वयं को पीछे रखने का स्वभाव जो शास्त्री जी देकर गए, उसका एक उदाहरण है। एक मुझे पंक्ति याद आती है, शलभ बन जलना सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। ऐसे कठिन पथ पर हंसते खेलते चाचा जी ने अपना जीवन बिताया। मैं उनको उनके जाने से कुछ 2 वर्ष पहले मिला था, मिलने ही गया था। और मैंने कहा चाचा जी सेंचुरी तो लगाओगे? तो हंसकर बोले नहीं, 2-3 रन कम रह जाएंगे। तो ऐसा एक अपने जीवन को हंसते खेलते बिताने वाले हमारे चाचा जी, उनके सुपुत्र कमलेश शारदा जी, जो परिवार को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कमलेश जिस समय संघ चालक है ईस्ट कनाडा संभाग के, और वो भी पूरे समय से अपना प्रेरणा से काम कर रहे हैं। तो शारदा परिवार की ओर से कमलेश जी अपना विचार रखेंगे। हमारे कनाडा में
हमारे परिवार के जो मुखिया हैं सुरेंद्र जी, उनकी अनुमति से मैं अपने परिवार की ओर से कुछ बोलूंगा। बड़ा मुश्किल है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। He was such a tall tree, and we were small samplings growing under the tree. So we could never understand who he was. Whichever direction we looked, he was a different person. We know that he touched the lives of hundreds of people in his lifetime. Many people understand him for different reasons, understand him differently. But there was one common thing that everybody agreed upon, was his love and affection for all. These ingredients were a magnet for people to accept him instantly. And that helped Shakha work. He never planned anything. All his action was from the bottom of his heart. Whether it was family members, and we had a large extended family ranging from few years to 60, 70-year-olds in Canada, USA, UK, and Bharat. Everybody felt close to him. He had a tact of communicating adequately according to the age group, likes and dislikes of the person he was talking to. That was his speciality. Born in a small village, Chirik, in Punjab, a very simple life, a large family. After his father's death, people started drifting away, and he decided to go to Amritsar for higher education. And with very meager belongings, very tough, poverty-stricken life, he found solace in spirituality and learning. And when Sangh came into his life, he had decided that that's what he was going to do. When he emigrated and we joined him later on to Kenya, outside his profession, his first priority was Sangh. And he assumed family was part and parcel of his vision. Without understanding, without questioning, we followed it. Our house was open for all Swamsevaks any time of the day. And Swamsevaks dropped in daytime, nighttime, whether it was for sitting, discussing, entertainment, meals, even sleepovers. And there were many times, because if he said 3 people are going to come for dinner, there were probably 5 or 6 people who ended up coming. And we, as family members, ended up living on the leftovers. But that was not a problem.
but that was reality and we accepted it. We always wondered who he was. He was an individual, a family man, a swayamsevak, a social worker, a teacher, and he was a guide to many, many families. And it was difficult to understand where one ended and the other started. It was one seamless movement. He moved from one to the other and back without any difficulty. And that was again his specialty. Difficult to say too much about him. I just remember a few incidents which I'll share with you quickly. When we were young, he took us to Shaka, sometimes carried us on his shoulders or carried us. And we used to walk miles to the nearest Sanghastan. It was long walks. We were tired, we were hungry, but we enjoyed it. That was how we got introduced to Sangh and became part of our lives. I recall that in early 50s, 1950s, when various countries in Africa were becoming independent, Belgian Congo became independent. But because of law and order problem, the Belgian citizens had to leave the country in a rush, and they traveled by train to Mombasa to take a ship back to Europe. And he found out that these refugees had to travel long hours, days in train, and the train stopped in Nakuru in early hours of the morning. So he made my mother make some sandwiches and tea, and on his own, he would carry all this stuff to the station and just offer it to the refugees. It carried on for a long time. We learned about it later. We were very young. One incident that shows how he thought. Vasudeva Kutumbakam. He had such strong belief in divinity, in God. He didn't care. He wasn't afraid of anything. During the Mau Mau rebellion, when the local populations were struggling to get independence, there was a rebellion called Mau Mau in mid-50s and close to 60s. People were being killed randomly. Europeans and Asians were targets. But he would still wake up early in the morning before sunrise, and put his Ganvesh on and alone walk miles in pitch darkness to Prabhat Shaka, not caring for his safety. And he didn't miss one during this very turbulent period. And whenever we asked him, he always said, I have my Durga Kavach. He used to pray to Ma Durga. He says, I have my Durga Kavach. I'm okay. Many such incidents happened, which reflected his character. Now, people who came in contact with him, even his fellow teachers. Recently, I found out that one of our English teachers from Menengai High School in Nakuru had come to Canada and retired in Canada. I got his number somehow, and after 45 years, I called him. I realized he wasn't feeling well, he was sick, so I asked about his health.
and he was getting well, but he said, I remember your father very well. And in his words, he was saying, in all his life, he was the noblest person that came in touch with me. A Goan person, Francis Noronha is his name. So he had some how to remember Pitaji. Now, Pitaji, when he was very close, lying in hospital in the last few weeks, like it was pointed out, he was still worrying about his work. Just like he asked for Pathakji's phone number, but in the hospital a week or so before, he asked me to connect him by phone to his secretary because he wanted to hold a meeting of Hindu Institute of Learning office bearers to plan the next step. We're still worried about that. And even in the hospital in the last few days, one of his students, Canadian students, Todd, he came in. He says, I want to see Shastriji. So I took him in and he spoke to Pitaji in Hindi. And he said, I'm going to Bharat and I want to tell him in Hindi that I'm going to Kashi, spend a month there. And Pitaji was so happy to learn that he's speaking in Hindi and also that he's motivated to go to Kashi, spend a month in Kashi. So that is the type of people, that is how he influenced all these people. And there were many students came in. And once even close, when he was physically very unsound, I asked him, why don't you take a little bit of rest? He didn't answer the question. He recited a poem in Hindi, which translated essentially meant that, O Ma Bharati, O Mother Bharati, pardon me for not doing more for you. That's how he answered my question. He was even planning after his death. In his will, he instructed us to set up a foundation. And from his foundation, every year, a stipulated amount goes to Guru Dakshina, and leftover goes to Seva for educational projects. So he was planning even what was going to happen after he's no more. Very difficult to, again, see that he's not with us anymore, but his blessings and his work and his inspiration keeps us going, not only for all of us, but every member of our extended family who remember him one or the other day, almost every day. Even the young ones, they didn't know him well, but they still miss him because he used to play with them, 2-year-olds, 1-year-olds, 5-year-olds. And the seniors obviously miss him for his guidance. That is the type of a person he was. And we are so glad that all of you have come together, friends, seniors, to give blessings and remember his lifetime. And for that, from family, we thank you from the bottom of our hearts. Namaste. कमलेश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार का सदस्य होने के नाते
मैं भी, मेरे मन में वो भाव आ रहे हैं जो हम सभी के मन में भाव आ रहे हैं, लेकिन भावना को तो रोकना पड़ता है कहीं ना कहीं। अभी मुझे डॉक्टर हर्षा जानी जी का मैसेज आया है कि उनके पिताजी भूपेंद्र भाई दवे 95 साल के, 95 ईयर ओल्ड, एंड ही वाज एन एसोसिएट ऑफ शास्त्री जी in 1957 Shakha. He cannot speak right now, but she requested me to remember him. So here I am mentioning Manya Bhupendra Bhai Dave ji, the senior most person to attend this particular कार्यक्रम. We come to the closure of the कार्यक्रम. We'll have a Vayaktik Geet now, and before the Samarop is done by Dr. Shankara Tattvadi. Vayaktik Geet is by Shri Piyush Shah from Kenya. He is a Vibhag of Hindu Swayam Sevak Sangh and is also संयोजक ऑफ संस्कृत भारती कीनिया. पीयूष भाई आइए, वैयक्तिक गीत और उसके बाद में मानी शंकरराव तत्वादी जी का समारोह होगा. मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में. कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में, जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में, चीरतम दल अज्ञता निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में. सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह में जितने मिले वे शूल भी, धन्य यदि मैं जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी, क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न उसके प्रेम में पलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में. मैं जलूं इतना कि सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो, मेदिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो, प्यार का संदेश दे अंतिम किरण,
मैं भले अपनत्व को छलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप मैं। माननीय शंकरा तत्वादी जी विश्व भाग के संयोजक थे, जिन वर्षों में शास्त्री जी अपने कार्य में व्यस्त थे, और इस समय विज्ञान भारती के पेट्रन है, नागपुर में निवास है, और उनको मैं निमंत्रित करता हूँ आए उससे पहले। जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में चाची जी के बारे में चाचा जी के शब्द सुनाए थे उनकी पुस्तक से, श्री यशवंत पाठक जी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, जिस प्रकार से चाची जी के विषय में बताया कमलेश भाई साहब ने कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन भर साथ दिया चाचा जी का और परिवार का, तो उनको भी श्रद्धांजलि दे, ऐसे उनकी श्रद्धा है, तो उनको भी हम पुण्य स्मरण करते हैं। माननीय शंकरराव जी। आज के इस अत्यंत प्रेरणास्पद कार्यक्रम के समाप्ति के लिए हम लोग चल रहे हैं। एक छोटी सी बात इस समय ध्यान में आती है कि ऐसे अनेक बंधु यहाँ पर विश्व विभाग में है जिनको भी अपने अपने संस्मरण सुनाने की काफी इच्छा भी थी, और ये संस्मरण बहुत प्रेरणास्पद भी रहे। इसलिए एक छोटा सा सुझाव मेरा रहेगा ऐसा कि इन सब संस्मरणों को लेकर के एक, जैसे हम लोग कुछ एक सौवेनिर या ऐसा स्मरणिका निकालते हैं, वैसे निकालने का यदि प्रयास यदि हो सका तो एक बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए एक अधिक अच्छी ऐसी श्रद्धांजलि भी उस समय दी जा सकती है। शास्त्री जी के विषय में अनेकों ने जो बातें रखी, उसमें से अनेकों का जो उनका एक सामान्य अनुभव रहा कि अत्यंत चैतन्यमय ऐसा उनका जीवन था। उनका जो सहवास मिलता था उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जिसको हम लोग शायद, मुझे स्मरण नहीं, परंतु एक्सुबरेंस एक शब्द प्रयोग ऐसे आता है कि जैसे फाउंटेन हेड ऑफ जो चैतन्य जो कहा जाए, ऐसा उनका और निकट का रहना। कहीं भी ऐसे दूर के ग्रुप में भी यदि शास्त्री जी बैठे रहे तो वहाँ पर हंसी मजाक ऐसी चलती रहेगी, ये तो बड़ा स्वाभाविक था। और जैसा किसी बंधु ने उल्लेख भी किया था कि उनकी जो स्वाभाविक और सकारात्मक ऐसा दृष्टिकोण रहता था, उसी कारण से उनका यह एक प्रकार से उत्साह, उमंग, यह सब दिखाई पड़ता था। तो वास्तव में यह भी हम लोग शास्त्री जी के माध्यम से उनके द्वारा सीख भी सकते हैं कि सब प्रकार की परिस्थिति में भी सदैव हंसते प्रसन्न वैसे रहे। यानी पूना का जो उत्सव या उल्लेख बाद में हुआ था कि वहाँ के विश्व संघ शिविर के अंतिम उनका वो शिविर था, और उसमें वो आ नहीं सकेंगे ऐसी सूचना मेरे पास भी पहुँच गई थी। मेरी इच्छा भी थी कि यदि वो पहुँच सके तो बहुत आनंद आएगा उस समय। और बड़ा अचानक या आश्चर्य भी हुआ, आनंद भी हुआ कि वो किसी प्रकार से शायद परिवार वालों की इच्छा उस समय थी नहीं कि वो वहाँ पर आए करके, परंतु अत्यंत कष्ट की अवस्था में भी वहाँ पर आए, और सबको उन्होंने वहाँ पर जो अभिभूत किया अपने उस वहाँ के वातावरण को, यह भी वहाँ पर जो उपस्थित थे उनको यह स्मरण होगा। आयु के दृष्टि से देखा जाए तो जिनको हम लोग शायद बड़ी आयु का वृद्ध ऐसा कहते हैं, ऐसा साधारणतः लोग कहेंगे, परंतु वृद्ध की केवल एक ही परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ पर ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, ये शब्द प्रयोग चलते हैं। उसमें से वृद्ध का यह अर्थ कि केवल आयु के हिसाब में न होकर के जीवन का जो उनका अनुभव रहा, वास्तव में वह भी एक वृद्धत्व का एक परिचय कैसा रहता था। अपने यहाँ पर एक श्लोक भी आता है कि वह मंडली नहीं है,
कि जिसमें वृद्ध लोग उपस्थित नहीं है। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, ऐसा कहा गया है। तो उसमें केवल यह आयु का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि उसके अंतिम दूसरे पंक्ति में ही कहा है कि वो वृद्ध भी वो नहीं है कि जो धर्म का प्रतिपादन वहां पर नहीं करेंगे। नसा सभा यत्न संति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदंती धर्मम। वृद्ध वो नहीं है कि धर्म को नहीं बताएंगे, अर्थात वृद्ध के द्वारा ही अपने को धर्म की एक प्रकार से पहचान होती है। धर्म अर्थात करणीय और अकरणीय, इनका विवेक, करणीय और अकरणीय का विवेक बताना, यही वास्तव में एक धर्म की एक छोटी सी व्याख्या परिभाषा ऐसी हो सकती है। और उस अर्थ में वास्तव में ऐसा सबका अनुभव रहा कि शास्त्री जी जिनके जिनके भी संपर्क में आए, उन्होंने वहां पर योग्य प्रकार से उसको उनके लायक जो भी करणीय अकरणीय की बातें वैसे रही, उनके लिए स्वयं का शायद वह जो क्या करना है करणीय है वह उनको ज्ञात है। हमारे अनेकों का यह अनुभव भी रहा कि वह देव दर्शन के लिए जाया करते थे। तो नई व्यक्ति को एक बार शुरू में आश्चर्य कि अच्छा शास्त्री जी देव दर्शन भी करते हैं क्या वैसे। तो उनका देव दर्शन मतलब हमको पता भी होगा कि नवीन संपर्क करना, यही उनका देव दर्शन था। अर्थात यह जो एक उनके दृष्टि से समाज की पूजा, समाज का कार्य, यही एक ईश्वर पूजा भी थी। अन्यथा और उनका देव दर्शन मतलब अर्थात लोगों से संपर्क करना, मिलना, इस प्रकार से अब उनकी परिभाषा वैसे रही। वास्तव में एक अत्यंत, और ये सबका अनुभव सभी ने बताया हुआ है कि पता नहीं वो क्या रोज ही उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो जन्म दिवस स्मरण हो आता था कि बराबर मुझे भी वैसे रवि जी को, सौमित्र जी को, सभी के लिए यह एक छोटी सी पंक्ति कहीं ना कहीं कविता के रूप में वह लिख करके वहां पर बराबर सवेरे उनका एक फोन आता था और बड़ी हंसते हंसते अपने वहां पर आगे की प्रगति के लिए उत्साह प्रदर्शन वह उनसे हम लोग प्राप्त कर सकते थे। वैसे वास्तव में वृद्ध के लिए एक बात और भी आती थी, ऐसे अपने श्लोक में आता है कि अभिवादनशीलस्य, ऐसा जो रहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आएगा तो उसका आयु तो बढ़ेगी उसको, परंतु यश, बल, प्रगति के लिए उपदेश, ये सब अपने को प्राप्त होता है। दूसरों को उत्साह देने की दृष्टि से एक श्लोक मुझे स्मरण हो आता है कि छोटा भी गुण यदि किसी के अंदर हो, उस गुण को बढ़ा करके बड़ा करना। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, अर्थात छोटे से परमाणु के सरीखा भी गुण हो, उसको पर्वती कृत्य मतलब बड़ा बना करके और स्वयं के हृदय में आनंद अनुभव करना। निज हृदय विकसंत संति संत कियंतः, ऐसे संत पुरुष बहुत कम होते हैं और हमारे शास्त्री जी वास्तव में उस श्रेणी में ही एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में अपने सामने आते हैं। एक वैसे तो इंग्लिश का वह कवन है, तो हमारी किसी अन्य प्रकार के कवन का भी स्मरण एकदम मुझे जो हो आया, तो उसकी लॉन्ग फेलो की यह 4 पंक्तियां हमने भी सुनी होगी कि ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ ग्रह अपने बेकन लाइट तरीके थे, एक दीप स्तंभ ऐसे, जैसे टीचर होने के कारण, और टीचर की परिभाषा भी सबको शायद वो पता भी होगा, टीचर और स्टेशन मास्टर के बीच में किसी को अंतर पूछा तो उसने कहा कि ये स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन्स एंड टीचर ट्रेन्स द माइंड्स। उसी प्रकार से अपने माइंड को ट्रेन करने वाले ऐसे शास्त्री जी रहे। और लॉन्ग फेलो का जो है 4 पंक्तियां बता करके अपने यह विचार, अपना यह समारोह का छोटा सा उल्लेख यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि उनका जो कर्मशील जीवन था उसका एक उल्लेख करना भी ठीक रहेगा। यानी निवृत्ति के पश्चात भी यहाँ पर कनाडा में आने के बाद, और जो बात रत्नाकर नारल जी ने कही वहाँ पर कि इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग
यानी इस प्रकार से वहां पर आरंभ करते हुए, और उल्लेख भी हुआ ही थे कि जहाँ पर लोग वास्तव में निवृत्ति लेते हैं, तो निवृत्ति न हो करके वह वास्तव में उनका एक वानप्रस्थी जीवन का एक अंश वहां पर प्रकट उनके जो है हुआ था। तो कर्मशील जीवन, अत्यंत उत्साहपूर्ण जीवन, इस प्रकार से ये जो उनके जीवन से हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। लॉन्गफेलो की कविता का ऐसा कि द लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time, ऐसा कहा गया है। तो उनके जीवन से स्फूर्ति लेकर के और फिर बाद में अपना भी जीवन उसी प्रकार से आगे हम बढ़ा सके, कुछ प्राप्त कर सके, ऐसी इच्छा प्रदर्शित करता हुआ और उनको भी अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पण करता हुआ अपनी बात में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। इस उत्तम कार्यक्रम को अपनी दिशा दर्शन के साथ पूर्ण करने के लिए शंकरा तत्वादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 और अधिकारी आए थे और कई अधिकारी यहाँ पर हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी सूची है। 2 विश्व विभाग से जुड़े हुए प्रचारक यहाँ पर थे। श्याम पांडे जी को कोविड हुआ है, इसके कारण जो बोल नहीं पाए। रामवेद जी को समय कम था लेकिन आकर वो यहाँ पर आकर गए। अभी कार्यक्रम की समाप्ति है और शांति मंत्र का संतोष प्रभु जी पाठ करेंगे और कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी यहाँ पर आए, सभी ने उनके एक उत्साही जीवन के कई पहलू हमें बताए और खुद भी शेयर किए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। और शारदा परिवार की ओर से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संतोष जी शांति मंत्र बोलेंगे, कार्यक्रम पूरा होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।